press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the History Question Bank for 10th Maharashtra Board. So this is the third video, and in this video we will see the first chapter of Political Science. Name of the chapter is Working of Constitution. So let us see which are the questions that are given in the question bank. So first is choose the correct option from given options and complete the sentence. So you have to choose any one option from this and you have to write the complete sentence. So you have to write all the you have to write complete sentence and underline the correct part. So the correct option. So the first question, the Maharashtra dash seats are reserved for women in local self-government institutions. So what is local self-government institutions? So that local self-government institutions are institutions like Panchayat, municipalities, Zilla Parishad. So in this local government institutions, local self-government institution, 50% सीट्स are reserved for women. पूरे इंडिया में 33% सीट रिजर्व्ड है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि कोई स्टेट ज़्यादा भी रिजर्व कर सकता है. सो इन महाराष्ट्र देयर आर 50% स्टेट्स, 50% सीट्स दैट आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. Second question, which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self-development? So the answer is Dowry Prohibition Act. डावरी मतलब जो दहेज दिया जाता है शादी के टाइम, तो उसके खिलाफ एक लॉ बना है दहेज नहीं लेकर के. सो दैट नेम ऑफ द लॉ इज डावरी प्रोहिबिशन एक्ट. Then third question, essence of democracy is decentralization of power. This is given in textbook. This is very very important. It may come in exam. Dash ensures transparency and accountability of government. So out of these acts, out of these laws, right to information is the correct option. Question number 7, straight true or false, and if you are telling it is true or false, then you have to give the reason. Indian democracy is considered the largest democracy in the world. So answer is true. Why? Because India's population is very high. India is second in the world in terms of population. First is China, but China is not a democratic country. India is a democratic country. So as lots of people are participating in democracy, lots of people are participating in elections. So as India's population is high, or India's population is more, so most number of people in if you compare other countries in the world, more number of people are participating in elections. So we can say that India is largest democracy in the world. There are many representatives in India if you compare other countries. Secrecy in the working of government. Secrecy मतलब क्या कि सीक्रेट नहीं रखते. जैसे गवर्नमेंट का कुछ काम है वो सीक्रेटली नहीं कर सकते. कुछ काम उनको सीक्रेटली करना पड़ता है, डिफेंस वाला या जो मिलिट्री वाला काम, लेकिन बाकी सब उनको लोगों को बताना है. सो सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? राइट, हमें इन्फॉर्मेशन लेने का हक है. गवर्नमेंट से हम कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं. सो ये जो सीक्रेसी है राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से कम हुई. सो क्वेश्चन क्या दिया है? सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड. सो इट इज़ रॉन्ग, इट हैज़ डिक्रीज. सीक्रेसी कम हो गई राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से. सो इंक्रीज की जगह डिक्रीज आएगा तो ट्रू है, लेकिन ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि इंक्रीज बोला है. मतलब क्या बोला है? ये लॉ आने के बाद और सीक्रेट हो गए. ऐसे नहीं है, लॉ आने के बाद सीक्रेट कम हो गए गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट को हमें शेयर करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन. द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लिविंग डॉक्यूमेंट. यस, ट्रू, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वी कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट्स. लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या? उसमें चेंजेस कर सकते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, वी कैन मेक चेंजेस. Okay, so it is a living document. Decentralization of power is central to democratic government. True. Yes, decentralization of power मतलब क्या कि पावर एक किसी के हाथ में ना हो, वो डिस्ट्रीब्यूट करे, लोगों तक पहुंचे, डिसेंट्रलाइज करे. So because of this we are having panchayat municipalities in India. So decentralization of power is central to democratic government. Answer is true. Rights based approach, directly question is answer is given. ये आपको लिखना है, ये जो पैराग्राफ में दिया है. राइट्स मतलब पहले सिटीजन को क्या लगता था कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट एक ऐसा फीलिंग होता था कि गवर्नमेंट हमारी देखभाल करेगा, हमारे लिए काम करेगा. लेकिन अभी क्या हो गया? मेंटालिटी चेंज हो गया. लोगों को अभी मालूम है कि गवर्नमेंट का वो काम है, मिनिस्टर्स का या जो पॉलिटिशियंस है उनका काम है, बिकॉज दे आर आवर सर्वेंट्स. ओके, अर्लियर द अप्रोच वॉज डिफरेंट. अर्लियर पीपल यूज्ड टू थिंक दैट दे आर बेनिफिशरीज, मतलब उनको जो भी फायदा गवर्नमेंट से होगा. अभी approach change हो गया. Now they know that government's job is to provide benefit to people. Okay, so the approach has changed. So in decades after independence, process was made for more and more democratization of politics. However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. कि लोग बोलते थे कि ऐसा बोलते थे हिंदी में, माई बाप सरकार, मतलब सरकार जो करेगा हमारे भलाई के लिए होगा.
Now they have changed their mentality. Now people know that it is government's duty to work for the betterment of people. Okay, so approach has changed. You have to write this, ये लिखना है आपको, 2 marks के लिए आएगा. Then right to information. What is right to information? So true right to information, उसको short में RTI बोलते हैं. In 2005 this act was passed. So according to this act, now government has to share the information with the people. If people think that the work is not done properly, they can request information from the government. So ये लिखना है आपको. सिटीजन एम्पावर हो गए उससे, सिटीजन ध्यान रखने लगे गवर्नमेंट के काम के ऊपर, और जो काम में सेक्रेसी था वो कम हो गया. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ से आपको आंसर लिखना है, और लोगों का और गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन था वो भी बढ़ गया. लोग अभी जाके क्वेश्चन पूछने लगे, लेटर लिखने लगे गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर. इट इज़ कंपल्सरी टू आंसर बिकॉज वी आर हैविंग अ एक्ट, वी आर हैविंग अ लॉ. आंसर नहीं किया तो जो ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होगा. ठीक है. देन process of policy of reservation of seats. So you must be knowing that in India, for establishing social justice and equality, we are having reservation for some people, for people from scheduled caste, scheduled tribe, or other backward class also. We are having reservation so that the people who are not getting opportunities earlier, they can get opportunities if we are giving them reservation. So we are having reservation in fields of education, in jobs. So policy of reservation of seat is meant for those sections of society who have been deprived. Deprived means they were not given opportunities earlier for education and employment. So long period of time they were not given opportunities. So now because of reservation they are getting opportunities. So people from scheduled caste, scheduled tribe, also we are having reservation for other backward classes. Prevention of atrocities. Atrocities क्या होता है कि जो किसी के ऊपर दबाव लाते हैं, किसी को मारते हैं, कोई गरीब आदमी है उसको तंग करते हैं. ठीक है, जो रिच है, जो पावरफुल है. तो ऐसे जो लोग हैं जो लोअर कास्ट के या फिर जो माइनॉरिटीज़ है, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ ना हो, उनको जो पावरफुल है वो लोग तंग ना करें, इसके लिए एक लॉ बना है. दैट इज़ राइट, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट. एट्रोसिटीज़ से बचने के लिए. ओके, सो वी आर हैविंग दैट एक्ट दैट इज़ हेल्पिंग द पुअर और हेल्पिंग द पीपल हु आर वीक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एट्रोसिटीज़. So scheduled caste and scheduled tribes. So for people from scheduled tribes and scheduled caste and scheduled tribes, these people are basically poor, they are illiterate. So people who are rich, who are powerful, they are taking advantage of these people. Okay. So this is the important act for establishing social justice. यहाँ से आंसर होगा. This is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes, and any act of atrocity committed against them is liable to punishment. सो ये एक्ट क्यों बनाया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको लिखना है कि पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दे वर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज अर्लियर. पीपल फ्रॉम हायर कास्ट वेर ट्रबलिंग देम, दे वर नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन. ओके, सो लॉट्स ऑफ atrocities were happening against them. So to protect that, to prevent that, or to protect the people, so to stop the atrocities, we have passed an act, that is scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act. बाद में आपको ये लिखना है. ठीक है. देन कंप्लीट द एक्टिविटी. ये जो डायग्राम दिया है, फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, इसका आंसर देखो यहाँ है. फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ये आंसर है. ये दोनों भी जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये क्वेश्चन, ये इसमें से इसका आंसर आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भी ब्लू कलर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट आर गुड गवर्नेंस के क्या क्या फीचर्स है. तो वी आर हैविंग अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आंसरेबल होना चाहिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. गवर्नमेंट ने कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए, अपने काम लोगों को बताना चाहिए, जो काम कर रहा है, कितना पैसा लगा कौन से काम के लिए. सो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद हम पूछ सकते हैं, और गवर्नमेंट का काम ट्रांसपेरेंट हो गया. देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट. जो मिनिस्टर्स है, जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट पर्सन शुड बी इफेक्टिव. कि कोई अगर कंट्री बाहर से आके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमें बचाना चाहिए उसने, और जो भी कंट्री में काम चल रहा है, ही शुड बी एफिशिएंट. ओके, और जो काम करने के लिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, ही शुड बी एफिशिएंट. एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल. ये आएगा, इसमें से आप और भी ऐड कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो. ठीक है. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18. तो पहले 21 एज था वोटिंग करने के लिए, अभी 18 कर दिया. तो 18 करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो यूथ है, यंग लोग हैं, उनको भी चांस मिला, राइट टू वोट मिला. सो पहले जब स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वोटिंग एज वॉज 21. Then when Rajiv Gandhi became prime minister, during that time it was reduced to 18. So now people who are completing 18 years of age, they are getting right to vote. So what has happened, what changes have happened because of this? Let us see.
So यहाँ से आएगा. The voting age was earlier reduced from 20 which gave opportunity to political participation of young generation in India. तो वोटिंग एज कम होने की वजह से क्या हो गया, जो 3 साल के थे, 3 साल जिनको वेट करना पड़ता था वोटिंग करने के लिए, वो लोग को भी अभी वोटिंग राइट मिला. सो नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट ऑल्सो. देन सच प्रोविजंस हैव मेड मैनी इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. कि ज़्यादा लोग और बढ़ गए जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हैं. Because of this voting right, because of this age reduction in the age, more and more people are now voting. This change is not only quantitative. ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बढ़ गया, लोग ज़्यादा आ गए वोटिंग करने के लिए, ऐसा नहीं है. क्वालिटेटिव भी है. अभी नाउ पीपल हु आर यंग, दे आर हैविंग सम एस्पिरेशंस, सो दे आर वोटिंग फॉर अ लीडर हु इज able to fulfill those aspirations. This change is not only quantitative but also qualitative, as new political parties are emerging with the active support of young voters. So you must be knowing that there are many political parties whose main voters are young. लीडर्स भी यंग होते हैं, ताकि उनको पता है कि अगर ओल्ड लीडर रहेंगे तो यंग लोग उनको वोट नहीं करेंगे, तो नए नए लोगों को भी चांस देते हैं. और जो यंग है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में एक्टिव भी होते हैं, these parties represent various expectations of people and compete in political sphere. ये पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो compete भी करती है और उनको यंग लोगों के लिए भी काम करना पड़ता है. नहीं काम किया तो वो जो यंग लोग हैं वो किसी और पार्टी को वोट करेंगे. ठीक है. देन व्हाट इज मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. हियर डायरेक्टली वी आर हैविंग अ आंसर. ये देखो, ये आंसर है इसका. जो एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव. सोशल जस्टिस मतलब क्या? सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, सबको इक्वल, जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी फैसिलिटीज़ है उसका सबको इक्वल हक होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए. ओके, दैट इज सोशल जस्टिस. सोसाइटी में न्याय होना चाहिए सबके ऊपर. जस्टिस मतलब न्याय. सो अभी जिनको न्याय नहीं हो रहा था, जो लोग को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे थे, उनको अगर फैसिलिटीज़ मिला तो सबके साथ जस्टिस होगा. टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव द सोशल कंडीशंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी टू ऑल इंडिविजुअल्स. डिग्निटी मतलब क्या? कि उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए सब लोगों को. और जो लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो ऐसे लोगों को हम, वो जो हमने देखा था कि रिजर्वेशन है या एट्रोसिटीज़ वाला एक्ट है, ठीक है, ऐसे सब लॉ क्यों बनाए? क्योंकि सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करना है. द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. जो लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर या प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कम, ऐसा सब बंद हो गया. नाउ एवरीबडी इज इक्वल. ओके, तो ये अचीव करने के लिए हमने नए नए चेंजेस लाए. ओके, देन अभी क्या एफर्ट्स लाए देखो. टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एफर्ट्स आर बीन मेड एट ऑल लेवल्स. सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो एफर्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जब भी कोई एफर्ट करता है, दैट बिकम्स अ लॉ. लॉ बनाता है गवर्नमेंट. लॉ बनाने के बाद सबको फॉलो करना पड़ता है, और जो लोग फॉलो नहीं करते, वी आर पनिशिंग देम. सो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. But the government efforts and policies on the front are more important. For democracy to be inclusive. Inclusive मतलब क्या? जो लोगों को exclude किया था पहले, जो लोग को include नहीं करते थे हम लोग, उनको भी include करो, उनके लिए भी policies बनाओ. One must try to bring all sections of society into mainstream. Mainstream मतलब क्या? उनको भी, जो लोग को हम लोग इक्वालिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे थे, जॉब्स नहीं दे रहे थे, नाउ वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे आर कमिंग इन द मेन स्ट्रीम. Democracy is in fact a process of accommodating different sections of society. Why democracy is a process of accommodating? Because democracy believes that everybody is equal. So we are giving equal opportunity to everybody. We are having equal voting rights. We are not differentiating on the basis of money or on the basis of their social status. So we are treating everybody as equal. So democracy is a step. Democracy is indeed a process of accommodating everybody. We are accommodating everybody. एकोमोडेट मतलब क्या? जो भी हम लोग डिसीजन बनाता है गवर्नमेंट, जो भी लॉज बनाता है, जो भी कुछ फैसिलिटी पॉलिसीज़ बनाता है, उसमें सब लोग को फ़ायदा होता है. उसमें सब लोग के लिए बनाता है, किसी को दूर नहीं रखता है उससे, या कोई रिलीजन को देख के या फिर कोई कास्ट को देख के उसे पॉलिसीज़ या उसको फैसिलिटी देता है, ऐसा नहीं होता है. सभी लोग के लिए पॉलिसीज़ बनाता है. डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. कि डेमोक्रेसी की वजह से जो झगड़े हैं वो नहीं होते, क्योंकि हम सबको इक्वल मानते हैं. ऐसा नहीं कि कोई किसी को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर मानते हैं. अगर सुपीरियर और इन्फीरियर मानेंगे तो ही झगड़ा होगा. ठीक है. विच डिसीजंस ऑफ कोर्ट हैज रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन एंड ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन. एक्चुअली दिस आंसर इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ये क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है, तो मैंने कुछ डाइजेस्ट से और कुछ खुद के पॉइंट्स और कुछ 9th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक था उसमें कुछ पॉइंट्स थे, उसके बेसिस पे आंसर बनाए. इससे भी अच्छा आंसर आपके पास हो तो वो लिखो. ठीक है. विच डिसीजंस ऑफ द कोर्ट हैज रिजल्टेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑनर, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन.
कि ऐसे कौन से कोर्ट ने डिसीजंस बनाए थे, दिए थे, जिसके वजह से जो वुमेन को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे वो प्रॉब्लम कम हो गए और उनका जो ऑनर है, डिग्निटी है, प्रोटेक्ट होने लगा. So apex court मतलब सुप्रीम कोर्ट has given several judgments which have helped in the protection and honor of prestige of women. अभी कौन से जजमेंट दिए थे? पहला देखो, राइट टू एलिमनी. एलिमनी बेसिकली क्या होता है? एलिमनी इज एलिमनी मतलब क्या कि अगर डाइवोर्स होता है हस्बैंड और वाइफ का, तो अगर वाइफ कुछ कमा नहीं रही है, वो डिपेंड होती है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, तो हस्बैंड को वाइफ को कुछ पैसा देना पड़ता है ताकि उसका जो लाइफ है वो चल सके आगे. सो दैट इज एलिमनी. सो पहले ऐसे नहीं था, पहले पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता था, वो औरत को अपना कुछ काम खुद करना पड़ता था, ठीक है. बट नाउ बिकॉज ऑफ सी नाउ आवर सोसाइटी इज़ नॉट इक्वल. हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है. हम पेपर पे बोलते हैं इक्वालिटी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. वुमेन आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स. मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा होते हैं, तो उनको वुमेन को जो भी उनका फैसिलिटीज़ है या जो उनके देखभाल के लिए जो पैसा लगेगा वो सब नहीं देते. तो हमने लॉ बनाया कि अगर आप डाइवोर्स कर रहे हो या वुमेन को आप नहीं देख रहे हो तो पैसा मिलेगा. कौन देगा? हस्बैंड देगा. हस्बैंड को अपने इनकम में से देना पड़ेगा. सो दैट इज एलिमनी, राइट टू एलिमनी, एंड इट इज़ कंपलसरी नाउ. सो ये लॉ बनाया, और ऐसा कोई अगर लॉ नहीं कर रहा है तो कोर्ट में जा सकती है वुमेन, और कोर्ट डिसीजन देगा और कोर्ट उसे फोर्स करेगा कि आपको पैसा देना है. एज वेल एज राइट टू इक्वल रिन्यूमरेशन. रिन्यूमरेशन मतलब क्या? वेजेस. जो अगर वुमेन भी काम कर रही है सेम और मेन भी काम कर रहे हैं, दोनों भी सेम क्वालिफाइड है, तो दोनों को सेम पैसा मिलेगा. रिन्यूमरेशन मतलब वेजेस, पैसा या सैलरी. पॉलीगैमी वॉज मेड इलीगल. पॉलीगैमी मतलब क्या? एक से ज़्यादा लेडी से शादी करना. सो पॉलीगैमी वॉज मेड इलीगल एंड वुमेन. सो अगर डेथ होता है तो कर सकते हैं, या फिर डाइवोर्स होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं कर सकते. हिंदूज में ऐसा लॉ है, ठीक है. पॉलीगैमी वॉज मेड इलीगल एंड वुमेन जस्ट लाइक मैन गॉट राइट टू सू फॉर डाइवोर्स. पहले कैसे था कि सिर्फ मैन ही डाइवोर्स दे सकता था, अभी ऐसा नहीं है, वुमेन भी दे सकती है, ठीक है. फैमिली कोर्ट्स वेर एस्टैब्लिश टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. ये लास्ट ईयर के बुक में से लिया है मैंने. फैमिली के जो भी इश्यूज है, जैसे डाइवोर्स का है, या पेरेंट बच्चा है तो किसके पास जाना चाहिए, माँ के पास या फादर के पास, या सेपरेशन उनको अलग होना है, या फिर केयर कौन करेगा बच्चे का, कहाँ से पैसा आएगा, ये सब जो फैमिलीज के इशू है उसको सॉल्व करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है. वो बाद में जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक कोर्ट है जो है फैमिली कोर्ट. जो फैमिली कोर्ट में ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होंगे, ठीक है. फैमिली रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है. वुमेन हैव इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड फादर. ये आपको पता होगा कि बेटे को भी शेयर मिलेगा, बेटी को भी सेम शेयर मिलेगा, और हस्बैंड के भी प्रॉपर्टी में वुमेन को शेयर होता है. पहले ऐसे शेयर वगैरह कुछ मिलता नहीं था, ठीक है. एंड देन बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस दे आर गेटिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है. तो उनको पता होता है कि अगर आगे जाके कुछ हो जाता है तो उनको कुछ पैसे उनके पास होंगे, क्योंकि उनको शेयर है प्रॉपर्टी में. वुमेन अलाउड एक्सेस टू रिलीजियस प्लेसेस. ये सभी रिलीजियस प्लेसेस में वुमेन को अलाउड है जाना. पहले रेस्ट्रिक्शंस थे अभी, लेकिन कुछ जगह है, रेयरली कुछ जगह है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस है. उसके ऊपर भी फाइट चल रहा है. अब फ्यूचर में कहीं भी जा सकती है वुमेन. सिर्फ रूल्स फॉलो करना है, जो भी है मेन के वुमेन के लिए रूल्स एक ही होना चाहिए. द एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. डोमेस्टिक वायलेंस, घर में जो मारपीट होती है या वायलेंस होता है, उसके अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. इसके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस दिया है कोर्ट ने. सो ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन को. सो इट नीड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी. उनका जो डिग्निटी है, हम हिंदी में जैसे बोलते हैं, उनका जो इज्जत है वो बचाने के लिए, जैसे उनका सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो बचाने के लिए हमें कुछ लॉज बनाया हमने, और वुमेन को प्रोटेक्ट करता ही है. और अगर उनको सेल्फ रेस्पेक्ट उनको नहीं मिल रहा है तो वो अप्रोच कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, या फिर वो पुलिस स्टेशन में जा सकती है. तो ये सब लॉज उनके लिए बनाए हैं. सो ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है, जो डोमिनेट करते हैं मेल, ये डोमिनेशन वगैरह सब एंड हो गया अभी, ठीक है. जो डोमिनेशन सब बंद हो गया, जो डोमिनेट करते थे मेन. सो ये डोमिनेशन सब बंद हो गया. ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन हैव एंडेड. सो नाउ वुमेन आर हैविंग इक्वल राइट्स, ठीक है. इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो. स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है. यस, व्हाट इंक्लूड्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिया हुआ है. देखो, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कोई चेंज नहीं कर सकता है, जो बेसिक है, जो अमेंडमेंट से चेंजेस नहीं कर सकते. हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट, यस.
So we can make some changes in constitution, but there are some things that are very very important that cannot be changed, that are included in the basic structure of constitution. इसमें क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, मतलब इंडिया का जो हेड होगा दैट पर्सन विल बी अ इलेक्टेड पर्सन. इलेक्शन से ही आएगा वो. उसका फादर प्राइम मिनिस्टर था तो उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऐसा नहीं है, बन सकता है लेकिन इलेक्शन में उसको जाना पड़ेगा, इलेक्शन से ही आएगा. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमेशा के लिए रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये हमेशा के लिए रहेगा, ये हम चेंज नहीं कर सकते. कल जाके इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं आ सकता. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है. कल जाके ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट सब कैंसिल, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, या स्टेट ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, ऐसा नहीं है. कुछ बातें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनना पड़ता है. So that is federal structure of government, where we are having two tiers of government. One is central government, one is state government. Then promoting unity and integrity of the nation. So unity जो है इंडिया का, integrity है, सब लोग एक साथ रहना चाहिए. कल जाके कोई बोल नहीं सकता कि हमें अलग कंट्री चाहिए, ऐसा नहीं होता है. एंड sovereignty of nation. sovereignty मतलब क्या कि हमारा जो डिसीजन है वो हम खुद लेंगे, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे. Okay, so whatever decisions we want to take for our country, for our people, that will be taken by us, the citizens of India. We will not act according to the other countries. The other countries cannot force us. ठीक है, तो that is sovereignty. Then secularism and supremacy of constitution. So in India constitution is supreme. सबसे ऊपर कौन है, constitution. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी constitution है, क्योंकि उनका जो पोस्ट है वो constitution ने ही बनाया है. एंड सेकुलरिज्म मतलब क्या, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. गवर्नमेंट डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा सब किसी रिलीजन के बारे में. एंड पीपल आर हैविंग राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन. कोई फोर्स नहीं कर सकता है उनको. ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर्स. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल continue with the third chapter of history, and then I will upload the electoral process chapter. I'm trying to upload chapters as quickly as I can, but it takes time. मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये सब आंसर्स निकालना पड़ता है, उसके बाद एडिट करना पड़ता है, टाइम लगता है. सो एक वीडियो में रोज अपलोड करने का कोशिश करूँगा. अगेन, if you are liking my videos, then please share and subscribe, and thank you for watching.